So everyone, today we are going to start base theorem, and in order to start base theorem, there are two more terms which you must know before starting base theorem. What are those two terms? Write on that. Everyone, start. So the first topic we are going to study today in order to study base theorem is write on the first topic mutually exclusive events. Write on mutually exclusive events. अब लिखो उसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के अंदर लिखना राइट ऑन two or more events two or more events are said to be mutually exclusive. Two or more events are said to be mutually exclusive if if two or more events do not occur at the same time. If two or more events do not occur at the same time. For example, a man cannot travel from one place to another place both by a man cannot travel from one place to another place both by plane and train. Second example, in single toss of a coin. Second example, in single toss of a coin, we cannot get both head and tail at a time. In single toss of a coin, we cannot get both head and tail at a time. Third example, in an examination, a student cannot pass and fail both at a time. In an examination, a student cannot pass and fail both at a time. Okay, so we are finding that what is the meaning of mutually exclusive events. Mutually exclusive का मतलब होता है कि यहाँ पे simultaneously दो चीज अकर नहीं कर सकते. तो इस तरह का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं. जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या एक बार में हेड एंड टेल, क्या मैंने बोला हेड एंड, सी दिस पॉइंट, मैंने क्या वर्ड यूज किया? हेड एंड टेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज 0, बिकॉज़ दिस कैन नॉट हैपन. एक बार में एक कॉइन को टॉस किया मैंने और एक बार में हेड एंड साइमल्टेनियसली वो सेम एक बार में हम लोग टेल, दोनों चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. इसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. दूसरा एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया उसको मैं प्रोबेबिलिटी में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो अगर मान लो मैं अगर ये बोलूं इन एन एग्जामिनेशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास एंड फेल? Here it is 0 because ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक एग्जाम तुमने दिया और मान लो उस एग्जाम का ओवरऑल रिजल्ट तुम पास और फेल दोनों है. सपोज तुम रिजल्ट अपना देखेगा और रिजल्ट में ऐसा लिखा रहेगा that you have passed and failed both the exam. I mean, sorry, you passed, your assessment is तुमने पास किया and you failed. तो ये कैसे पॉसिबल है? किस तरह का असेसमेंट है? क्या ये पास और फेल दोनों हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है. जो मैंने एग्जांपल दिया उसको अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग को एक जर्नी करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, तो क्या अगर हमको कोई बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल ट्रैवल बाय plane and train, is it possible? It's not possible. The probability is 0. So we find that mutually exclusive events are those kind of events where the two cases cannot occur simultaneously. Two different cases, like here head and tail represents two different cases. This cannot occur simultaneously. मतलब and possible नहीं है
एंड पॉसिबली, तो इस तरह का इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं. एंड मेक श्योर दैट if the events are mutually exclusive, we find that if the events are mutually exclusive, we find that जितने भी events होंगे, सारे events का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, मतलब दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, तो आंसर क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज इनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है. मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो कॉमन, मतलब एक साथ मतलब अकर करेगा दोनों इवेंट्स में से. तो इस तरह का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं. नाउ suppose if I say that, listen here everyone, if E1 and E2, let's say E and F are mutually exclusive events. If I say E and F are mutually exclusive events, if I say suppose, then the first thing, listen here everyone, the first thing we can say that therefore probability of E intersection F will be what? Can you tell me? What will be probability of E intersection F? Yes? It will be equals to what? 0. The 0. It will be equals to 0. And अगर we find that अगर हमको मान लो probability दोनों event का अगर हमको union निकालना है, probability of union of both the events, then addition law states that probability of E union F is probability of E plus probability of F minus probability of E intersection F. But you are finding that this part becomes what? 0. So what is the formula of probability of E union F? Probability of E union F का formula बन जाएगा probability of E plus probability of F. All right, everyone. So if the events are mutually exclusive, we find that in this case, अगर हमको दो event का union निकालना हो, so it is nothing but sum of both the events. But if I ask you ये दोनों events का intersection क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? 0. और अगर मैं बोलूं कि दोनों का union क्या होगा, तो आंसर क्या होगा? दोनों events का बस sum total निकाल दो, दोनों events का sum total निकाल दो probability का, वही तुम्हारा union का वैल्यू होगा. इसका रीजन क्या है? Because उनमें जो भी intersection part है, intersection part will become what? 0. Because events कैसे हैं? Mutually exclusive events हैं. Now one more example I'll take here. Okay, one more example I'll take. Just note down. Suppose मान लो E1, E2, E3 dot 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 up to En. Suppose these are mutually exclusive events. If I say that these are mutually exclusive events, so tell me what is probability of E1 union, E2 union, E3 union dot dot dot. बताओ तो who can tell me what will be the answer? Dot 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 up to En. Who can tell me what will be the answer of this? Is anyone who can respond? Who wants to respond? Yes, sir. The probability of E1 plus probability of E2. Very good. Because you will find that हमको जितने भी events का union निकालना है, और अगर सारे events mutually exclusive है, तो हमको पता है कि सारे events का, दो event का या तीन event का या चार event का, सारे events का, दो का बोलो, तीन का बोलो, चार का बोलो, सबका probability value intersection का क्या होगा? 0 होगा. और अगर हमको union निकालना है, तो बस हम क्या करेंगे? सारे events का हम sum total निकाल देंगे. समझ में आया तो बात? तो एक बार फटाफट ये वाला कॉपी करो, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड टर्म जो कि बेस थ्योरम में काम आएगा, एंड दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. सो फर्स्ट एवरीवन कॉपी डाउन दिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क देम, जो भी डाउट है. सो एवरीवन राइट डाउन द सेकंड टर्म जो कि बेस थ्योरम में काम आएगा, दैट इज राइट डाउन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, राइट डाउन. Now, two or more events are said to be mutually exclusive and exhaustive. Are said to be mutually exclusive and exhaustive if number one they are
mutually exclusive. If number one, they are mutually exclusive. Number two, probability of E1 plus probability of E2 plus probability of E3 plus dot 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 probability of En. मतलब जितने भी इवेंट्स हैं, अगर सारे इवेंट्स का सम टोटल अगर 1 होगा, इस तरह का इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर वो मान लो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ? What do you mean by this term exhaustive? Exhaustive means in this particular case you don't have any other events जो हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए. मतलब यहाँ पे ये सारा, ये जो भी हम पॉसिबल केसेस सोच सकते हैं वो सारा यही है. तो ये सारा का सम प्रोडक्ट क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, एक बार कॉपी करो, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना ध्यान से. एवरीवन लिसनिंग. जैसे ध्यान देने एक बार, एक एग्जामिनेशन में एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, देखो ध्यान देना. In an examination, a student either gets grade A, B, C और D. मतलब एक एग्जाम में एक स्टूडेंट को इन चारों ग्रेड्स के अलावा कोई और ग्रेड्स वो आज तक उसके जीवन में, लाइफ में, जब से वो अपना एकेडमिक्स चालू किया है, तो उसकी लाइफ में A, B, C और D के अलावा और कोई ग्रेड वो लाया ही नहीं. और अगर वो एग्जाम देगा, ध्यान देना, अगर कोई इसके अलावा कोई ग्रेड आया नहीं है, इसका मतलब अगर एग्जाम देता है तो one and only one, listen here this word, इसका मतलब क्या हुआ? It means what? It means he is going to get one and only one grade out of A, B, C और D. Am I correct everyone? इसका मतलब ये हुआ कि उसको अगर मान लो उसके लाइफ टाइम में in an examination a student either gets grade A और grade B और grade C और grade D. इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने लाइफ टाइम में जब भी वो एग्जाम दे, कुछ का भी एग्जाम अपीयर करे और ये 4 ग्रेडेड से अगर एसेस किया जाता है उसको, तो उसकी लाइफ में इस चारों ग्रेड के अलावा कुछ और मिलेगा नहीं. So do you agree that उसको ये 2 ग्रेड एक बार में मिलेगा? पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि तीनों ग्रेड एक बार में मिलेगा एक एग्जामिनेशन में? दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. क्या उसको एक साथ चारों ग्रेड मिल सकते हैं? दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये हम लोग कैसा सिचुएशन देख रहे हैं? ये हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं जहां पे 2 इवेंट या 2 से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली अकर नहीं कर रहे. मतलब एक समय पे तीनों चीज अकर नहीं करेगा, या चारों चीज अकर नहीं करेगा, या दोनों चीज अकर नहीं करेगा. कैसा चीज होगा? ये कैसा इवेंट है? इट मींस दैट ही इज गोइंग टू गेट वन एंड ओनली वन ग्रेड आउट ऑफ ABCD. मतलब उसको मिलेगा तो एक ही मिलेगा और इनमें से कोई एक ही मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा इवेंट है? ये है पहला बात. देखो पहला बात कि इन चारों में से कोई, मतलब 2 चीज मिलेगा नहीं, 3 चीज मिलेगा नहीं, 4 चीज मिलेगा नहीं. इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. समझ में आया तो बात? इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. बिकॉज अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि उसको प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसको A इंटरसेक्शन B ग्रेड मिलेगा, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट को A भी मिलेगा ग्रेड एंड B भी मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? 0. अगर मैं पूछूं कि उसको B एंड C दोनों ग्रेड मिलेगा, उसका आंसर भी 0 होगा. अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको C एंड D दोनों ग्रेड मिलेगा, उसका आंसर भी 0 होगा. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D मिलेगा, उसका भी आंसर 0 होगा. ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ. ये सेम वो सिचुएशन हो गया कि क्या एक स्टूडेंट एक एग्जाम देने के बाद पास एंड फेल दोनों हो सकते हैं? कभी नहीं. तो वो स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद A एंड B दोनों एक साथ ग्रेड ला सकते हैं? दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल. कोई एक ही लाएगा. तो ये लाइन स्टेट करता है, ये लाइन की वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. और ये वाला लाइन स्टेट करता है कि अगर वो अपने लाइफ टाइम में इसके अलावा कोई और ग्रेड लाया नहीं है, इसका मतलब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स ईदर A ग्रेड और B ग्रेड और C ग्रेड और D ग्रेड, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ इवेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. ये तो 100% ट्रू है, होगा ही. अगर वो अपने लाइफ टाइम में इस 4 ग्रेड के अलावा कोई और ग्रेड लाया नहीं है, तो इसका मतलब वो तो कोई 4 ग्रेड में से कोई एक ग्रेड लाएगा ही. तो फिर अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो A ग्रेड लाएगा या B ग्रेड लाएगा या C ग्रेड लाएगा या D ग्रेड लाएगा, क्या सवाल पूछ रहे हैं? वो जो है वो स्टूडेंट
या तो अपने एग्जाम में ए बी सी डी के अलावा कुछ नया ही नहीं है। एक बात बताओ, कोई भी स्टूडेंट या तो पास होता है या तो फेल होता है। पास में बहुत कैटेगरी होता है, फेल में भी बहुत कैटेगरी होगी, पुअर, वर्स्ट, एकदम बहुत ऐसे हो सकता है। लेकिन एक अगर मैं ये पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिव्स एन एग्जामिनेशन एंड ही विल पास और फेल? कैसा सवाल है, पास होगा या तो फेल होगा? वन ही तो, ये तो 100% होगा ही, वो तो यही पूछेगा ना। दूसरा जिससे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा और होता क्या है, पास होता है एक बच्चा या तो फेल होता है, इसके अलावा और कुछ होता है नहीं। तो पास और फेल का प्रोबेबिलिटी, पास और ओवर का, फेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वन ही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें जितने भी इवेंट्स है, सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम टोटल क्या होगा बताओ तो, वन ही तो होगा ना। इसके अलावा और क्या होगा? अगर हम ये बोलते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास, तो वन नहीं होगा। क्यों? जरूरी थोड़ी ना कि वो पास ही होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल फेल, जरूरी थोड़ी ना फेल ही होगा। लेकिन अगर हम ये बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास और फेल, ऑब्वियसली इट इज वन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन द आउटकम विल बी ईदर हेड और टेल? अरे मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, या तो हेड या तो टेल आता ही है, तो वन होगा प्रोबेबिलिटी। अगर मैं डाई को रोल करता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर रोलिंग अ डाई the outcome is either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6? अरे तो श्योर इवेंट है, तो होगा ही, इनमें से ही कुछ आता है, वन होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर रोलिंग अ डाई यू गेट 1 और 2, हाँ ये सवाल है जहां पे 1 या तो 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने का संभावना क्या है, 1/6, 2 आने का 1/6, दैट इज 2/6। तुम देखो डायरेक्टली तुम जवाब दे सकते हो कि पूरा 6 आउटकम में 1 या तो 2 कितने वे से आ सकता है, 2 वे से। तुम दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऐड करो, ये ऐसे लिख दो, बात बराबर। तो बात को ध्यान से एक चीज को रिलेट करना तुम लोग। इंडिपेंडेंट इवेंट में सुनना एक बार, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि इंटरसेक्शन जब हम निकालते हैं तो सारे इवेंट्स को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और यूनियन में, सॉरी, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर हम यूनियन निकालते हैं तो सारे इवेंट्स को ऐड करके निकालते हैं। समझ में आया तो बात? तो ये हम लोग देख रहे हैं इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में क्या फर्क है, सबको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो अपना एक एक करके सवाल पूछो, ठीक है? मैं पॉज कर, जस्ट अ मिनट, I read out the question once again. So we are going to do the sum after the topic, okay? Mutually exclusive and exhaustive. जहाँ पे ये क्वेश्चन में फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ, देखना एक बार। There are 4 events E1, E2, E3 and E4, one of which must and only one can happen. So just everyone, after reading this line, can you explain me the meaning? Yes, I am giving you few minutes time. Can you explain me इस line का मतलब क्या हुआ, बताओ तो? What kind of events are E1, E2, E3 and E4? Tell me. Exclusive and exhaustive. Yes. Mutually देखो, exclusive exhaustive. अच्छा अब मैं तुम लोग से एक चीज पूछूंगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है जिससे पता चल रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और कौन सा ऐसा टर्म है जिससे पता चल रहा है कि एग्जॉस्टिव भी है? कैन यू एक्सप्लेन मी? यस, आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन. यस, टेल मी, बी स्पेसिफिक. So only one say exclusive or must say exhaustive. वेरी गुड, वेरी गुड. सी, मस्ट का मतलब क्या हुआ कि इनके अलावा, इनमें जो भी इवेंट्स हम लोग को मेंशन किया हुआ है, इन इवेंट्स के अलावा और कोई इवेंट्स के बाद मतलब है ही नहीं. मतलब जो इस, ये जो क्वेश्चन है, देयर आर 4 इवेंट्स, जो हम क्वेश्चन जिस पर्टिकुलर सिचुएशन का हम बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में ये 4 इवेंट्स के अलावा कोई और चीज डिस्कस्ड मतलब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है. कैसे पता चला? बिकॉज which must, one of which must, मतलब इनमें से ही कोई एक होगा. इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके अलावा और कोई ऐसा चीज नहीं है इस क्वेश्चन में. हो सकता है ना ऐसा भी हो कि मान लो एक स्टूडेंट अपने पूरे लाइफ टाइम में ए बी सी डी ई ग्रेड लाता है. सपोज अपने एक स्टूडेंट अपने पूरे लाइफ टाइम में ए बी सी डी ई लाता है वो स्टूडेंट. लेकिन अभी मैं सिर्फ 3 ग्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ कि what the probability that a student scores A grade is 1/3, B grade is 2/5, C grade is 7/8. मैं D और E के बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने. इसका मतलब ये थोड़ी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि और भी 2 केस है जो कि इस सब में डिस्कस नहीं किया हुआ है, लेकिन है उस पर्टिकुलर, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और भी बाकी 2 केसेस है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दोस 2 केसेस. वी आर डिस्कसिंग आउट ऑफ 5, we are discussing only 3. But how to know that there are no other cases? मतलब इसी टर्म को तो एग्जॉस्टिव बोलते हैं ना. एग्जॉस्टिव जो टर्म है, इसका मतलब ही तो ये है कि इनके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है. How do I know? Once again I read out the question. There are 4 events E1, E2, E3 and E4, one of which must
मतलब इनमें से ही कोई एक होगा और एक ही होगा। देखो वन एंड ओनली वन, समझ में आया? वन ऑफ विच मस्ट एंड ओनली वन कैन हैपन। सो इस पूरा लाइन से क्लियर हो जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी इवेंट्स है, मतलब जितने भी इवेंट्स है सारे इवेंट्स का सम टोटल प्रोबेबिलिटी का वन होगा। अब आगे देखना एक बार, अब ऑड्स इन फेवर, वो जो अब जो प्रोबेबिलिटी दिया है उस पे अब हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखो क्या लिखा हुआ है, द odds are 2:5 in favor of E, in favor of E1, sorry. Then 3:4 in favor of E2. Then 1:3 in favor of E3. और E4 के बारे में कुछ मेंशन नहीं है। So who can tell me कि what is the meaning of 2:5? You know that odds in favor में मैंने बताया था कि रेशियो दो चीज का हम कैलकुलेट करते हैं, फेवर का इज टू अगेंस्ट का, और ऑड्स अगेंस्ट में अगेंस्ट इज टू फेवर का कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेशियो। सो हु कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट E1 will occur? Who can tell me what is answer? Yes, 2:7. it is 2 divided by 7. This is the probability that E1 will occur because 2 shows that ये जो 2:5 है, 2 क्या डिनोट कर रहा है? होगा। 5 क्या डिनोट कर रहा है? नहीं होगा। फेवर इज टू अगेंस्ट, क्योंकि ऑड्स इन फेवर है। अगर ऑड्स अगेंस्ट होता तो फिर अगेंस्ट इज टू फेवर होता है, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी E1 will not occur? 5/7. Similarly, probability of E2 will be 3/7. Probability of E3 is 1/4. All right, मैंने नॉट लिखा है, समझ जाना। E2 नॉट क्या होगा? 4/7. E3 नॉट क्या होगा? 3/4. दैट इज अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो तो फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट E4। ऑड्स अगेंस्ट E4 बोला है। अब E4 निकालेंगे कैसे हम लोग? हम लोग को पता है कि सिंस E1, E2, E3 and E4 are mutually exclusive and exhaustive events. It implies probability of E1 plus probability of E2. एक और चीज है, मैंने यहाँ पे E1, E2, E3, E4 ये सब डिफाइन क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइंड है। देखो यहाँ पे E1, E2, E3 and E4 आर इवेंट्स, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ, तुम क्यों डिफाइन करेंगे? E1 है 2/7, 3/7, 1/4. So do the calculation. So what is the answer? So probability of E4 is 1/28. So the probability of E4 is 1/28. So what is odds in favor of favor पूछा है ना? odds against पूछा है। odds against E4 क्या होगा बताओ तो? Yes. So 27:1. Yes, because probability of occurrence of E4 is 1/28, means out of 28 case 1 shows favor, 27 shows against. Odds against क्या होगा? 27:1. Is this clear? This is the answer. Now, after copying down this sum, if you have any doubt, you can ask. I'm just waiting for a few minutes to clear your doubts, okay? And इसके बाद तुम लोग जो एक मैंने सम भेजा है, दूसरा एक और सम भेजा है, देखो तुम लोग वो एक बार करो, सेम ही है क्वेश्चन, ठीक है? सेम ही क्वेश्चन है। Is this clear everyone? So I find that the question is exactly same. Okay, फिर भी कर लो एक बार ना, मैंने जो WhatsApp किए, और कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। So everyone note down. So now we'll be starting base theorem. Okay. So in order to start base theorem, see, I must go first this way.
टोटल प्रोबेबिलिटी एंड देन बेस थ्योरम। ये तरीका जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से जाता हूँ। पहले मैं आज बेस थ्योरम कराऊंगा, तो बेस थ्योरम कराने के बाद जो तुम्हारे सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पहले हम बताएंगे इंडिपेंडेंट वापस, उसके बाद कंडीशनल वापस है, उसके बाद हम रिलेट करेंगे उसको वापस से बेस थ्योरम से, तो जाके पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो टुडे जैसे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कराया तुम लोगों को, जैसे क्या किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जस्ट आई गिव यू द फॉर्मूला और बोला, ऐसे नहीं कि तुम लोग को बोला रट लो, मतलब कंसेप्ट तो समझाया, लेकिन इतना डिटेल में फॉर्मूला कहाँ से कैसे आया, हम लोग क्यों डिनोमिनेटर में अगर e/f है तो डिनोमिनेटर में हम लोग n ऑफ f क्यों लिखते हैं, वो सब मैंने बताया नहीं, तो वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आज हम फॉर्मूला दे देंगे, बेस थ्योरम कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग वापस से शुरुआत से डिटेल में हम लोग करेंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को रिलेट करना बहुत आसान रहेगा। मैं कहीं से भी कुछ भी चीज रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन मान लो हम इंडिपेंडेंट जब करवा रहे हैं और अगर हम रिलेट करना चाहें बेस को, बेस में कुछ टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो तुमको बेस पता ही नहीं है तो कंसेप्ट क्लियर कैसे हो। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले अपने डोमेन में रह रहे हैं, मतलब इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो ये खाली इसी पे फोकस करो, बस ये कंसेप्ट देख लो कैसे किया जाता है। कंडीशनल कर रहे हैं तो बस इसी पे फोकस करो, अभी जब हम करा रहे हैं क्या बेस, तो इसी पे फोकस करो। अब उसके बाद जब हम लोग करेंगे तो सबको रिलेट करेंगे तो जाके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो राइट डाउन बेस थ्योरम, राइट डाउन द टॉपिक बेस थ्योरम, राइट डाउन E1, E2, E3, E1, E2, E3, comma dot 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 comma En, E1, E2, E3, dot 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 En are mutually exclusive and exhaustive events. Are mutually exclusive and exhaustive events. ओके मतलब ये जो बहुत सारे इवेंट्स जो मैंने लिखवाया है E1, E2, E3 डॉट 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 En, ये कैसा इवेंट्स होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स नाउ, एंड उसके ऊपर तुम लोगों ने सम्स भी किए। नाउ राइट डाउन E is a common event. E is a common event. E is a common event. E, okay, capital E is a common event associated. E is a common event associated with the above events. Associated with the above events. E1, E2, E3, dot 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 up to En. So here you find that there will be a common event जो सबके साथ एसोसिएट होगा, कॉमन इवेंट जो सबके साथ एसोसिएट होगा, और ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या है मैं बताऊंगा देखने का। तो इस अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E निकालने के लिए फॉर्मूला होता है probability of E1 into E/E1 plus probability of E2 into E/E2 plus probability of E3 into E/E3 plus dot 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 plus probability of En into E/En और न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। देखो ऐसा नहीं है, तुम लोग ये मत सोचना कि ये सिर्फ तुम लोग को रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल तुमको यस याद रखना पड़ेगा, बाद में तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर विल बी सेवरल इवेंट्स एंड व्हाट टाइप ऑफ इवेंट्स विल बी, ये जो बहुत सारे इवेंट्स होगा, ये कैसा इवेंट्स होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होगा। एक कॉमन इवेंट होगा, कैसा इवेंट होगा, जो सबके साथ एसोसिएट किया जा सकता है,
और इस केस में अगर मान लो तुमको निकालना होगा E1/E, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, जितने भी इवेंट्स है, जैसे कि ये क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। मतलब अगर मान लो 3 इवेंट्स है, E1, E2, E3, और एक कॉमन इवेंट है, तो फॉर्मूला यहाँ तक आएगा। अगर मान लो 4 इवेंट है, तो इसमें एक और चीज ऐड होगा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 into प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, जैसे E1/E निकालना है, ऊपर E1 into E/E1 लिखना पड़ेगा। E2/E निकालना होगा, अगर रिपीट E2/E निकालना होगा, तो यहाँ पे E2 आएगा, यहाँ पे E/E2। और ये मत सोचना कि सर अगर E1/E2 निकालना होगा तो ये चीज नहीं निकालना होगा, हम बताएंगे क्यों। ये कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद जो मैंने व्हाट्सएप किया क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन रीड करो, इन अ बल्ब फैक्ट्री। एक बार पहले कॉपी कर लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, और उसके बाद तुम लोग पहला क्वेश्चन रीड करना जो मैं व्हाट्सएप किया मैंने। Read the first question now. That is question number 1. Everyone read this question. That is question number 1. Okay, and the question is: in a bulb factory, there are machines A, B, and C. Which manufactures 60%, 25%, and 15% of the total production, respectively. तो बात को ध्यान से समझना तुम। यहाँ पे 3 मशीन है, देखो एक बार, A, B और C, ठीक है। अगर मान लो ये 3 मशीन से नाम जिसका लिखा हुआ है A, एक का B और तीसरा का C, ठीक है। और मान लो पूरा प्रोडक्शन का 60% प्रोडक्शन A का बना हुआ होता है, मशीन A का आउटपुट है, 25% प्रोडक्ट B का आउटपुट है, and 15% of total production C का। तो एक बात बताओ, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो उस फैक्ट्री में अगर बल्ब मैन्युफैक्चर ये 3 मशीन से ही होता है, ठीक है, ये 3 मशीन से ही अगर होता है, ठीक है, इस तीनों मशीन के अलावा कोई और मशीन यूज नहीं हो रहा है, ओके, तो फिर एक बात बताओ, एक बल्ब क्या दोनों मशीन से बना हुआ हो सकता है? बताओ हाँ या ना, बताओ। एक बल्ब दोनों मशीन से यस बनाया हुआ नहीं, मतलब हो गया पहला केस, मतलब 2 से नहीं बनाया जा सकता है। एक बार में तीनों मशीन से एक बल्ब बना रहे हो तो तीनों मशीन से बन के कैसे निकल जाएगा, समझ में? हाँ, अगर ऐसा होता कि वो ए से बी, ए में प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस होके बी में प्रोसेस होगा, फिर सी में प्रोसेस होगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर मान लो ये बल्ब ए बना रहा है, बी बना रहा है, कुछ सी बना रहा है, तो वो बल्ब तीनों मशीन से बनके एक बल्ब कैसे निकल जाएगा? इसका मतलब यहाँ पे अगर हम मान लो ऐसे अज्यूम करते हैं कि लेट E1 be the event that bulb is manufactured by bulb selected is, okay, I must say bulb selected is manufactured by machinery. I'm just writing by A, you understand? By machinery. E2 is the event that the bulb selected is manufactured by machine B, and E3 is the event that the bulb selected is manufactured by machine C. So what is the probability कि वो बल्ब जो हमने सेलेक्ट किया, देखो पूरा बल्ब, वो पूरा फैक्ट्री का बल्ब 60% प्रोडक्ट ए का बना होगा, 25% बी का, 15% सी का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये पूरा मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट को एक जगह रख दें और उस पूरा लॉट में से बल्ब जहाँ रखा हुआ है बहुत सारा, अगर मैं एक बल्ब चूज किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो बल्ब जो है वो मशीन ए का बना होगा? प्रोबेबिलिटी क्या है? 60% है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? 60%, मतलब 60/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो लॉट से तीनों मशीन से बल्ब बना के एक जगह रख दिया गया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन बी का बना हुआ है? 25/100। E3 का बना हुआ है, थर्ड मशीन का 15/100। ऑलराइट एवरीवन, अब देखो आगे देखो ध्यान से, देखो ये सब बोला नहीं था मैं, अपने आप से मैं तुमको समझाने की इस तरह से बोल रहा हूँ,
मतलब बल्ब को सेलेक्ट मैंने तो सिलेक्शन तक तो पढ़ा ही नहीं था, बट मैं समझाने के लिए इसको हम ऑर्डर से जा रहे हैं, एकदम लाइन बाय लाइन जा रहे हैं. Of their respective outputs, now there is a situation called defective. Now see, अब क्या है, रेस्पेक्टिव आउटपुट में डिफेक्टिव है, यहां भी डिफेक्टिव है, इसमें से इस ये जो पूरा बल्ब मैन्युफैक्चर किया है यहां भी डिफेक्टिव है, सी जो बल्ब मैन्युफैक्चर किया है मशीन सी यहां भी डिफेक्टिव है. मतलब कॉमन इवेंट क्या है बताओ तो, डिफेक्टिव. डिफेक्टिव इज अ कॉमन इवेंट. वो डिफेक्टिव मशीन ए का भी प्रोडक्शन, मतलब मशीन ए ने बल्ब बना दिया 10 बल्ब, मान लो 10 बल्ब में से कुछ बल्ब मशीन ए का भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, मशीन बी का भी हो सकता है, मशीन सी का भी हो सकता है. कॉमन टर्म क्या है, डिफेक्टिव. कॉमन इवेंट क्या है, डिफेक्टिव. वो डिफेक्टिव होगा मशीन ए का है 1% चांस है, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी 2% चांस है, डिफेक्टिव और मशीन सी का बना हुआ 1% चांस है. देखो लिखा हुआ, मैंने ऐसा कुछ अपने आप से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज लिखा हुआ था और मैंने बस उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में. अब हम क्या करेंगे, लेट E be the event that the bulb selected is defective. तो एक बात बताओ, अगर वो डिफेक्टिव है, सॉरी बल्ब सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव है, एंड वो अगर वो मशीन 1 का बना हुआ प्रोडक्ट है यानी मशीन ए का बना हुआ प्रोडक्ट है, क्या चांस है कि वो डिफेक्टिव होगा अगर मशीन ए का प्रोडक्ट है, वो मशीन ए का प्रोडक्ट है 1%, तो 1/100. आई रिपीट, प्रोबेबिलिटी में जो बल्ब सेलेक्ट किया वो डिफेक्टिव है अगर पता है कि वो ए का बना हुआ है. जैसे अगर पता है, स्लैश के बाद का मतलब क्या होता है, इफ वी नो दैट वो बल्ब मशीन ए का बना हुआ है, इट इज 1/100 लिखा हुआ है. प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव है इफ वी नो दैट वो मशीन बी का बना हुआ है, इट इज 2/100. प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव है इफ वी नो दैट मशीन सी का बना हुआ है. ठीक है, देखो लिखा हुआ ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट्स, मतलब ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, देखो लिखा हुआ है, ये टर्म यूज किया हुआ है. रेस्पेक्टिव मतलब पता है कि ए का वो बना हुआ है और डिफेक्टिव होगा 1%. रेस्पेक्टिव का मतलब तो यही हुआ ना, ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट्स 1%, 2% एंड 1% आर डिफेक्टिव. समझ में आया तो बात, ऐसे नहीं बोला कि पूरा लॉट में से, ये बोला है कि वो तुम्हारा मशीन ए का डिफेक्टिव, मतलब मशीन ए का प्रोडक्ट है डिफेक्टिव होगा, मशीन बी का प्रोडक्ट है पता है डिफेक्टिव होगा, मशीन सी का प्रोडक्ट पता है डिफेक्टिव होगा. मतलब ये हमको पता है कि ए का डिफेक्टिव 1%, बी पता है कि वो बी का है और वो डिफेक्टिव होगा 2%, वो बना हुआ सी का प्रोडक्ट है और डिफेक्टिव होगा 1%. तो यही है. लास्ट के बाद क्या है, पता है कि मशीन ए का है, पता है मशीन बी का डिफेक्टिव, पता है मशीन सी का डिफेक्टिव. समझ में आया? अब देखो लास्ट लाइन, बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम. ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, बिना देखे मैंने बता दिया. अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट, पूरा लॉट में रखा हुआ है बल्ब. अ बल्ब इज ड्रॉन, सो बल्ब इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वो ए का होगा 60%, बी का होगा 25%, सी का होगा 15%. ये सब हमने निकाली. और आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट अ बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. अब देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, निकालना क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है. ये सब तो डेटा दिया हुआ था, ये सब डेटा दिया हुआ था, बस मैंने क्या किया, बस मैंने उसको सेंटेंस से प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ नहीं. आई रिपीट, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, सेंटेंस में, जो सेंटेंस में लिखा हुआ था ऐसे, आप मतलब इन अ बल्ब फैक्ट्री ऐसे कैसे करके जो लिखा हुआ था, मैंने क्या किया, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर दिया. अब निकालना क्या है, देखो, a bulb is drawn at random from the total product and is found to be defective. वो मिल चुका डिफेक्टिव है. What is the probability? Now find the probability. Now find the probability. Listen here. Find the probability that it was manufactured by machine C. मतलब हमको पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है, हमको पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है. अब प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो मशीन सी का बना हुआ है. को पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है, निकाला मैंने. ऑब्वियसली अगर हम पूरा लॉट में से एक बार निकाला मैंने, ठीक है, निकाला डिफेक्टिव है.
अब मुझे जानना है, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गया क्या कि ये मशीन सी का है कि नहीं है, निकालो। मतलब मैंने लाइक आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर, सपोज क्वालिटी मैनेजर, लेट मी टेक दिस वे। हुआ क्या, ये पूरा पास्ट डेटा को एनालाइज करके पता चलता है कि 60% प्रोडक्ट मशीन ए का बना हुआ है, 25% बी का, 15% सी का, और उसमें से प्रोडक्ट ए का डिफेक्टिव इतना है, प्रोडक्ट बी का डिफेक्टिव इतना है, प्रोडक्ट सी का डिफेक्टिव इतना है। और मैंने लॉट में से अब आया हूं क्वालिटी चेक करने के लिए। ऐसा तो ये पास्ट डेटा है, तो पास्ट रिकॉर्ड से पता है कि ऐसा ही होगा। अब हम क्या किए, पूरा लॉट में से एक बल्ब को चूज किया मैंने। बल्ब को चूज करने के बाद डिफेक्टिव मिल गया, अरे डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव है मतलब ऑलरेडी पता चल गया डिफेक्टिव है। स्लैश के बाद क्या होता है, इफ, तो ऑलरेडी पता चल गया डिफेक्टिव है। अब मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो मशीन सी का बना। और तुमको पता है कि डिनोमिनेटर में, बेस थ्योरम में डिनोमिनेटर में क्या लगता है, जैसे यहाँ पे 3 केस है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा E1 into E/E1, E2 into E/E2, E3 into E/E3। ठीक है, डिनोमिनेटर में यही है। अगर मान लो यहाँ पे और एक केस होता E4, तो एक और केस आता, और ऊपर क्या है बता सकते हैं, बताओ तो देखिए ऊपर क्या है न्यूमरेटर में, फॉर्मूला देखिए बताओ। E3 into P of E by E3. Yes, 3 into E by E/, ये न्यूमरेटर। बस वैल्यूज पुट करो और कैलकुलेशन करो। ये कंप्लीट करके और सब कोई क्वेश्चन नंबर 2 करेगा, 2 नंबर अभी, 2 नंबर एंड 3 नंबर अभी करेगा सबको। कॉपी करो पहले।